Hello, everybody. Today we are live again, and today's subject is very light and enjoyable. It's for Harley Davidson lovers and photography lovers, and we're going to start in a minute. So, about our today's guest, besides his career as a business analyst, he has a lot of passions, one of them being writing and the other one photography. So, we're going to talk about these two things and we're going to welcome Mr. Sayed Faraz. Hello, Mr. Sayed Faraz. How are you? Hello, hi everybody. Good, thank you. Zara, how are you? I'm good. How's your day going? How are you today? Alhamdulillah, perfect. Not bad. Yeah, it's Great, great. yeah. Wonderful, wonderful. All right, I'm just checking my live so I can put the comments on this side Sure, take your so that time. I can see our comments. All right. So I have a lot of questions to ask you. They're going to be light questions, not usually the usual type of questions. The first thing, you are a bike rider, a Harley Davidson rider. So all the Harley Davidson fanatics can be excited today, and they can ask you some questions regarding that. And these days, in Pakistan, it's like really like the in thing to be riding. So I think it's Hello very to all my enjoyable. brothers, my rider brothers. Right. Yes, And we're going to ask you about your photography skills. Whoever has seen my shoots, they're all done by him. And he has a quite fan following from that side also. So I'm going to ask you your first question. I want to ask you, for the people who are interested in photography, what is your favorite camera model? Like, what cameras do you suggest for someone who's getting into the freelance photography or someone who wants to go into that field or as a hobby? Which cameras do you prefer? favorite camera is like a बहुत ही मुश्किल सवाल है शुरू से ही because you know what's happening is like हर साल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है there is something bigger and better और कोई नया कैमरा आ जाता है कोई नया फीचर आ जाता है and then you want this and you want that but मेरा current favorite model और अगर कोई entry level है कोई शुरू कर रहा है तो I think Sony A7 III is a really good camera. I love that camera. It's a mirrorless camera, but it's like a Okay. full frame camera. एंड बहुत ही ये 2017 2018 में ही आया था बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का ये कैमरा है इसके अंदर एक और सबसे अखीर बात जो लगती है मुझे वही है कि यू कैन पुट एनी अडॉप्टर लाइक प्रॉपर अडॉप्टर और तुम अपने Okay. पुराने कैनन और नाइकन के जो लेंस हैं वो उसके ऊपर माउंट कर सकते हैं तो लाइक डीएसएलआर के लेंस भी इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं इमेज स्टेबलाइजेशन उसकी बहुत ही ज़्यादा है और अच्छा, वीडियोस के लिए भी इट्स आई थिंक द बेस्ट थिंग आउट देयर लाइक आई मीन अनलेस के आपको कैनन से ही शूट करना है या नाइकॉन से ही शूट करना है उसके अंदर सही सही। इमेज स्टेबलाइजेशन मैंने बताया उसकी बहुत आला है लो लाइट कंडीशन अगर है और आपके पास लाइक एक्स्ट्रा लाइट नहीं है और आप शूट कर रहे हैं आप बाहर खड़े हुए हैं आपके पास ये कैमरा है यू आर गुड इट्स लाइक अ वीडियो किंग दिस कैमरा ऑटो अच्छा, फोकस जो है उसका वो अनबिलीवेबल है लाइक आप उसकी आँख के ऊपर सेट कर दें अपने सब्जेक्ट की और वो उसको खुद ही ट्रैक करेगा और वो खुद ही जो है ना ऑटो फोकस रखेगा नो मैटर अच्छा, के कितना दूर है और कितनी तेजी से आप ये कर रहे हैं और कितनी मूवमेंट है और उसमें एक और बहुत अलग फीचर है उसका नाम है साइलेंट शटर वो साइलेंट शटर जो है ओके, उसमें क्या होता है कि आपका जो शटर है उसकी आवाज़ कोई नहीं आती अगर आप आपने कभी इस तरह का पहले कैमरा यूज़ नहीं किया तो अच्छा, लाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे एक बीप की आवाज़ आएगी या कुछ सही, आएगी लेकिन लाइक बिल्कुल ही खामोश सो अच्छा इसलिए होता है कभी कभी आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है या कोई अच्छा, ऐसा बंदा होता है जो कि पहली दफ़ा कैमरा फेस कर रहा है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कैमरा की आवाज़ जो है ना लाइक इंटरव्यू चल रहा है तो आप खिचक खिचक नहीं कर सकते तो उस जगह पे वो बड़ा यूज़फुल रहता है अच्छा, और आपका बंदा जो है उसको भी लाइक वो भी इतना कॉन्शियस नहीं होता जब कैमरा शटर की आवाज़ आती है
So Sony A7 III probably is my Okay. DSLR में. उसके अलावा Canon Mark IV, Mark V is good. Nikon D500 was my first camera. Still love it. Um, phone में Okay. probably P40 Pro, Huawei का. There are so many. Acha. There are so many. Yeah. Yeah, yes, yes, go on because there are some comments we're getting. Zain Ali Shah is agreeing with you. He said agreed. So go on with the models a little bit so that the people who are interested in photography can. Zain Uh, Abdul is a really good photographer. Yeah, हम लोग टीचर में से एक है. आईफोन लाइक यानी आपका कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये फ़ोन जो है मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. P40 Pro, सैमसंग S10 प्लस, आईफोन तो आईफोन ही है. सो प्रॉब्ली अगर आपके पास ये सारे कैमरास हैं तो यू आर गुड टू गो एनीवेयर. या Great, great, great. Asha, next question. Do you like to shoot people, objects, or scenery? Because आपका जो page है, Demystified, उसमें scenery बहुत खूबसूरत खूबसूरत है because you like to travel and मेरी तो खैर people में आती है. But what do you like to do more? What do you like to shoot more? People, objects, or scenery? I like to shoot all three of them. I would say uh, portraits. अगर कोई like beautiful subject हो आप जैसा, या कोई object हो जो कि बड़ा cute हो देखने में, उसकी shoot करने हो, ज़ाहिर है उसमें मज़ा आता है. उसके अलावा when I'm traveling तो मुझे ज़्यादा जो है ना environmental सही सही photography सही. करने का like उस तरह मेरा दिल कर रहा होता है कि वो ज़्यादा capture करूँ. लोगों का इतना मुझे ज़्यादा वो नहीं होता. So I'm trying to like अगर मेरी pictures वगैरह भी देखो ना, उसमें you would see least amount of people. Like every तस्वीर में मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम लोग नजर आए. तो ये उस टाइम में सही. environmental photography ज़्यादा कर रहा होता हूँ. लेकिन क्या कहते हैं, अगर पोर्ट्रेट शूटिंग करनी है, बंदा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल लोग हैं, उनके साथ में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी कोई मसला नहीं होता. बट वैसे ग्रुप फोटोग्राफी या वेडिंग फोटोग्राफी जो है वो मेरी वीकनेस है, और आई डोंट एंजॉय इट दैट हाँ, मच. आई वुड से दैट. you don't enjoy it. या. सही सही सही. अच्छा जी, अच्छा. अच्छा, being a freelance photographer, अच्छा, let's just take a few more comments. Um, Hi Faraz, how are you? I'm Hi good. Faraz, Sayed Faraz. Love your photography skills. Your shoots are amazing. Thank you very much. And then we have Azra saying your photography is pretty good. Thanks. All right. So now I'm going to ask you about some negative part of a freelance photographer, because जो freelance photographers होते हैं वो basically ये शौक होता है आपका जो आप कर रहे हैं, right? Now अब अगर कोई what do you do when you have people who make unreasonable demands from a photographer? Have you ever had people making unreasonable demands from being a freelance photographer? How do you deal with that, or has that ever happened? आई थिंक इट हैपेंस ऑल द टाइम. अगर तो कोई ऐसा लाइक क्लाइंट है, या कोई ऐसा जिसने पहले कोई ऐसा बंदा है जिसने अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया है, और उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, उन लोग पहली दफ़ा फोटोग्राफी करवाने के लिए जा रहे हैं, उनको पहली दफ़ा अपना मार्केटिंग मटेरियल बनाना है, तो उन लोगों के पास बहुत सारी आई वुड से कि अनरीजनेबल डिमांड्स होती हैं. कुछ लोगों को बिल्कुल फोटोग्राफी और पोस्ट प्रोडक्शन का भी फ़र्क समझ नहीं आता. वो समझते हैं कि आप तस्वीर लेके फोटोशॉप के अंदर जो है ना अच्छा. उसको बिल्कुल ही कुछ और बना के आप जो है ना ले आएंगे. बट वैसा हो नहीं पाता. Right. So ये लोग जो है ना इस तरह से अनरीजनेबल बहुत सारे डिमांड्स करते हैं. बट अनरीजनेबल डिमांड भी लाइक इन अ वे एक तरह से सही है, बिकॉज उससे एटलीस्ट ये होता है कि आपको समझ आ जाती है कि बंदा चाह क्या रहा है. लेकिन देयर आर लॉट ऑफ देम जो कि अच्छा. आगे करते हैं. आई थिंक सबसे अच्छा ये है कि अगर आपको कोई काम करवाना है, किसी से आपको फोटोग्राफर की जरूरत है, तो आप हाँ. अपने सबसे करीबी फोटोग्राफर के पास जाएं और उसको समझाएं. तो वो आपको जो है ना अच्छी तरह गाइड करेगा कि भाई आपने दूसरे बंदे के पास जाके उसको किस तरह बात करनी है, या वो आपको किसी दूसरे के पास कनेक्ट कर देगा जो ये काम कर सकता हो. तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि बेसिकली फोटोग्राफर जो ये काम कर रहा है, खड़े होकर जो मेहनत कर रहा है, ये तस्वीरें खींच रहा है, वो बेसिकली आर्ट कर रहा है, वो उसकी मेहनत है. तो वो उसको जो है ना वो भूल जाते हैं. वो समझते हैं कि बस आपके पास सही. DSLR है, तो बस जो है ना आपका सारा काम जो है ना ये कैमरा ही कर रहा है, ये बंदा जो है तो बस उसके साथ साथ ही चल रहा है. तो ये लोगों को जो है ना समझ नहीं आती. जिन लोगों को आर्ट की वो समझ नहीं है, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है. सही 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 कह रहे हैं आप. I will not go on अच्छा, and tell कि मेरे नेक्स्ट reasonable क्वेश्चन. reactions क्या-क्या हुए हैं. Yeah,
just move on to next question. That's it. आप three why don't you tell us about three of your experiences? What if we asked you? Would you tell us, or should we just Uh, skip that? एक दफा एक क्लाइंट था, उन लोगों को क्या कहते हैं, फोटोग्राफी तो नहीं चाहिए थी लेकिन उनको वीडियो बनानी थी, तो उन लोगों ने मुझे वीडियो प्रोजेक्ट के लिए बुलाया और हम लोगों की सारी बात हो गई, गाना भी अच्छा था, बंदा भी सेट था। हम लोग गए प्रोजेक्ट के लिए साइट के ऊपर टेस्ट शॉट्स लेने के लिए। तो उसने जो साइट चूज़ की हुई थी वो बेसिकली एक बिल्डिंग थी, खाली बिल्डिंग थी जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, और उसके अंदर नीचे जो है ना मेज़ानिन लेवल की अच्छा। दुकानें बन रही थी, लेकिन बस प्लस्तर हुआ था और ज़मीन के ऊपर लाइक कूड़ा पड़ा हुआ है और मिट्टी पड़ी हुई है और क्या कहते हैं प्लस्तर भी कहीं-कहीं पूरा नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं है। तो Oh my उसने जो God. है वहाँ पे वो शूट करनी थी, लाइक आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या था। मैंने उसको बोला कि यार ये इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है, हाँ. मैंने 1-2 तस्वीरें लेके दिखाया, मैंने कहा इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है, तो हम इसको कंपनसेट कर सकते हैं विद ओहो. प्रॉप्स एंड स्टफ। तो उन लोगों का बजट भी Okay. लाइक बिल्कुल ही ना होने के बराबर, 3000 रियाल 2000 रियाल इस तरह का बजट था। उस बजट में उन लोगों की क्या कहते हैं उनका ओहो. मेकअप और प्रॉप्स क्या कहते हैं बाकी सारी चीजें जो हैं वो सारी उसी के अंदर हो रही थी। खैर वो कैंडल्स वगैरह लेके वहाँ पे अच्छा. आ गए और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे शूट करना शुरू किया। तो जब पहले हम लोगों ने शूट Oh किया, my God. Okay. उसके बाद मैंने जो है ना फुटेज ली किया, उसको थोड़ा बहुत एडिट किया। अब गाना जो था उसका बेचारे का गाना जो है ना अच्छा था हाँ और हाँ. वो सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन वीडियो अच्छा. जो है ना, एक तो उनकी एक्टिंग स्किल्स इतनी अच्छी अच्छा. नहीं थी, फिर दूसरा ये था कि अगेन वो जो बैकग्राउंड था वो तो वही था ना, अच्छा. लाइक अनजान गुंजान बिल्डिंग। तो वो बोलता है कि यार ये जो है ये नहीं होना चाहिए, ओ. इसको किसी तरह हटा दो, इसको किसी तरह फोटोशॉप नहीं कर सकते। मैंने कहा यार भाई हाँ. इट इज व्हाट इट इज, यानी कि जो आप जगह जहाँ पे लेके जाओगे वो वैसी की वैसी है, ये जिस तरह आप हैं उसी तरह आप कैमरे में नजर आएंगे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। सो या दैट वाज वन ऑफ सही. वो कभी फिर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ ऐसा। या दैट वाज वन Okay. All right. Very interesting. Very interesting. Very interesting story. तो आपको इस तरह के काफी सारे आते रहते हैं. अच्छा, we're just going to take a few questions and comments. Rehan is there. Rehan Salim. He's saying, Salam Faraz Bhai. How are you? I'm good, Rehan. Thanks for asking. Zain Alisha is saying, what type of photography can we do in this quarantine? Mariam, uh, what type of What type of photography? photography we can do? I think we can just TikTok, man. TikTok it is right now. Or objects, I suppose, or nature. Nature be, it's not really, Yeah. you can't really go out. Mariam Saqib is saying, we need photographers like you because back in Pakistan, we're lacking such amazing skills that you are having. Thank you. Wow. Thank Extremely you. talented, says Faraz. Mariam Saqib Thank you, Mariam. Thank you very much. is saying, all, all right, we're going to the next question. Do you prefer point to shoot or DSLR? Ooh, point to shoot and DSLR. मिररलेस कैमरास जो है अब क्या कहते हैं टाइम बदल गया है। मिररलेस कैमरास जो है अब बिल्कुल जो है ना उसी कैटेगरी में ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं जहाँ पे DSLR होता है। आई वुड से कि ये वो कोई भी प्रोफेशनल या कोई भी ऐसा बंदा होगा ना जिसको बहुत ज़्यादा शौक है फोटोग्राफी का, आई थिंक वो बोलेगा कि उसको दोनों कैमरास ही चाहिए। बिकॉज मिररलेस कैमरा जो है वो आजकल की ज़रूरत है, वो इट्स वेरी इजी टू कैरी, बहुत आसान है सब कुछ उसके साथ करना। एंड DSLR बिल्कुल एक ऐसा है जैसा आप कहीं जाके खड़े हो रहे हैं, आप अपनी सारी सेटिंग कर रहे हैं एंड देन यू स्टार्ट पेंटिंग द होल थिंग, यू नो। आई लव इट्स मैनुअल थिंग, और आप हर चीज़ सेट करके यू जस्ट यू नो गो विद अ प्रॉपर mindset and take that out and do photography. मुझे कुछ इस तरह का लगता है। Probably my current favorite is mirrorless cameras, but I would say कि if I have only mirrorless camera और मेरे पास DSLR नहीं है तो मैं बड़ा खाली महसूस करूँगा अपने आप को। अच्छा 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 सही 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 अच्छा so now we're going to go on to your other passion which is riding um so um do you prefer Harley Davidsons over other bikes and why and which types थोड़ा उसके बारे में बताएं हमें Uh, Harley Davidson over other bikes. Harley Davidson का सीन ये है कि आई थिंक फॉर एवरी हार्ली डेविडसन ओनर देयर आर लाइक टू गाइज जो कि बोलेंगे कि व्हाई हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन जो है मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि
आई डोंट नो मैन, उसकी बहुत सारी रीजन उसको ना लेने की हैं डेफिनेटली, लेकिन उसको लेने की भी बहुत सारी रीजन है। प्रैक्टिकली आई वुड से कि वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स, आई मीन probably your motorcycle will outlast you. अभी भी मैं यानी एक बंदे को जानता हूँ which is local guy over here, and उसके पास जो है हार्ले डेविडसन की उसकी जो मोटर लगी हुई है वो 1965 का इंजन है, and Oh, that engine is still working. I mean, imagine 55 साल हो गए हैं and that engine is still working, and वो क्या कहते हैं उसी तरह चल रहा है आजकल. So ये wow. जो चीज़ है उसका वो ये है. अब हार्ली डेविडसन, आप कभी भी आपका इंजन खराब हो जाए कहीं पे भी आप हो दुनिया में, यू कैन सेंड इट बैक टू योर डीलरशिप और उसको फिक्स करके आपको वापस भेजेंगे, तो उसकी सपोर्ट जो है वो कभी नहीं मरेगी. दैट्स अनदर रीजन टू हैव एन हार्ली डेविडसन. फिर उसका सीन ये है कि हार्ले डेविडसन इज द ओनली बाइक जो कि पूरी की पूरी कस्टमाइज कर सकते हैं आप, लाइक ऊपर से लेके ना नीचे तक पूरी की पूरी शक्ल आप उसकी बदल सकते हैं. सही. प्रॉब्ली हर बंदा जो ओन करता है, नॉट द वंस जिन्होंने बिल्कुल अभी अभी निकाली है, लेकिन हर बंदा जो हार्ले डेविडसन ओन करता है वो उसके अपने यूनिक स्टाइल के हिसाब से बनी हुई होती है. तो हर आई वुड से कि एवरी सिंगल हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल इज यूनिक इन दैट वे. हर बंदे की अपनी अपनी जना उसके अंदर टच होती है. सो इट्स एन Right. अमेजिंग. एज सून एज यू स्टार्ट लाइक वो एक एक्सप्लोजन की आवाज आती है, वो इतनी हाँ, हसीन आवाज है, वो इंजन की वी ट्विन टर्बो है उसका, तो वो बजता है. It's amazing. It's amazing. Harley it's an Davidson, amazing. any other bike, any day. सही सही सही. ये और मोटरसाइकिल एक ऐसा मोटरसाइकिल है जो कि वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुआ था. उसकी राइट. इतनी बड़ी हिस्ट्री है. सो सही है. अमेरिकन प्राइड है, उसके ऊपर सोफा लगा हुआ है, आप जब बैठ के जा रहे होते हैं, इट्स लाइक इट्स नथिंग एल्स मैटर्स. इट्स द राइट बेस्ट. राइट. एंड आप काफी स्पीड पे भी चलाते हैं. ये भी हार्ले डेविडसन बेसिकली बने ही हाई स्पीड टूरिंग के लिए हैं. अगर आपने बड़े सही. लंबे टूर करने हैं और अपने हाई स्पीड पे करने हैं, तो जाहिर है आप सुपर बाइक या अपनी स्पोर्ट्स बाइक पे बैठ के नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसके अंदर जो पोस्चर है, जो पोजीशन है ना, उसमें आप हाँ. बहुत ज्यादा देर मेरे ख्याल में नहीं रह सकते, वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है. लेकिन इसमें लाइक पूरा आपके पास बैक रेस्ट है and पूरा सोफा लगा हुआ है चेयर का, एंड देन यू आर सिटिंग लाइक दैट, और स्लोली स्लोली आपकी बाइक पिक कर रही है, बट इट गोज ऑल द वे अप टू 220 किलोमीटर एन आवर. तो हाँ. वो जो है वो स्पीड जो है अनबिलीवेबल स्पीड है, और इतना भारी वो मोटरसाइकिल है, लेकिन क्या कहते हैं उसकी सड़क के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल हिलता नहीं है. इट्स अमेजिंग. सही सही बहुत सही. आला है, वेरी कंफर्टेबल. Okay, we have a few more comments. Javeria Asad is saying, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. Uh, जो है Rehan Salim is saying, Faraz bhai, Harley तेज चलाने में मजा आता है या स्लो? हार्ली तेज चलाने में मजा आता है या स्लो? रेहान इज आस्किंग. स्लो का सीन ये है यार कि वो स्लो चलता ही नहीं है. सो हेयर मैं घर से निकलूँ और उसके बाद यहाँ से सड़क पे डालूँ और उसके बाद लाइक बिल्कुल मैं तीसरे गियर पे होता हूँ या तीसरे गियर में ही होता हूँ, तो वो 100 पे जो है ना वो आराम से जा रहा होता है, और बिल्कुल मक्खन जा रहा होता है कि, और वो आराम से मांग रहा है. लाइक आई रिमेम्बर कि जिस दिन मैंने इसको फुल थ्रॉटल लिया था और मैं इसको भगा रहा था, तो वो 180 पे जा रहा था. अब मैं खुद उस टाइम जो है डर रहा था, लेकिन बाइक जो है ना इतना स्मूथ था कि वो मांग रहा था कि भाई और दो मुझे. उसको आहिस्ता चलाने में इतना कोई खास मजा नहीं है, सिवाय कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में, बिकॉज इट्स अ बिग बाइक एज वेल, तो आप आहिस्ता आहिस्ता, बैलेंस उसका सही रहता है, लेकिन इतना ज्यादा मजा नहीं है, गर्म हो जाता है और बहुत लाउड है, तो आहिस्ता का मेरे ख्याल में इतना मजा नहीं है जितना तेज का है. Yeah. Okay, great, great. All right. Now our next question is, where to get the parts, like for customization. जैसे कि सब most Harley Davidson owners will customize it. तो Yeah. उसके लिए where's the tip to get parts basically? Well, see, Harley Davidson का सीन ये है कि Harley Davidson के one of the things people buy Harley Davidson is because of their dealers. इनका जो डीलरशिप है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है. हर जगह आप जाओगे, जहाँ जहाँ आपके पास Harley Davidson है, वहाँ पे उनका डीलरशिप होगा, और वहाँ से वो Okay. काम करवाना बड़ा आसान है. अब कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे लोग डीलरशिप से इतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते. यहाँ पे डीलरशिप जो है, जिस तरह बहुत ज़्यादा लोग सेटिस्फाई नहीं थे कुछ अर्से पहले तक, तो उसमें सीन ये है कि आप जो है, अगर आपको अपनी बाइक की मैकेनिक्स पता है, आपको मैकेनिकली आप साउंड है, so you just go ahead and buy order your part from eBay. हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल आप ऐसा है कि आप उसको बना सकते हैं पूरा एवरीथिंग इन इट विदाउट सिंगल पार्ट फ्रॉम हार्ले डेविडसन इटसेल्फ. लाइक इस तरह का मोटरसाइकिल है, हर Oh, चीज कस्टम, बट आपको पता होना चाहिए.
अगर Okay. आपको मिसाइल के बारे में नहीं पता, हार्ले डेविडसन के बारे में नहीं पता, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप अपने एरिया या किसी कस्टम बिल्डर के पास जाएं या किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाएं और उससे पूछ के वो बाइक का पीस ऑर्डर करें जो आपको मंगवाना है, स्पेशली अगर वो परफॉर्मेंस वाला कोई पार्ट अगर आप मंगवा रहे हैं तो परफॉर्मेंस पार्ट आप मंगवा, क्योंकि अगर आपने मंगवा लिया और वापस उसके ऊपर वो बैठा नहीं है तो देन यू हैव टू रिटर्न इट एंड देन रिटर्न वगैरह हो जाता है, बस ये है कि उसमें टाइम अच्छा बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। और उसके अलावा अच्छा वैसे अच्छा। जो बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं या नट्स बोल्ट्स वगैरह हैं वो तो इजीली कहीं से भी मिल जाते हैं, क्रोम पार्ट जिस तरह हैं, उसकी एसेसरीज वगैरह वो तो इजीली आप ऑनलाइन ऑर्डर करें एंड यू विल गेट अच्छा, you can get it online also. इट। Okay. And is there like a eBay? Okay, great. That's a good tip. All right. And when would be like? Is there like a pro tip where you would know when to buy it? Like, is there a season to buy Harleys, or would you like to advise on that, or is that like a Harley Davidson secret? Um, if you have the money and you want to buy Harley Davidson, then the best day to buy Harley Davidson is today. You Ah, should buy it today. okay. लेकिन obviously like कुछ कुछ मुल्कों में सीजन होते हैं, सीजन से मुराद ये एक्सट्रीम सीजन होते हैं। सऊदी अरब में गर्मी है, कनाडा में एक्सट्रीम सर्दियां पड़ जाती हैं, तो सही, तो उसमें तो नहीं सर्दी चला का सकता मौसम हो इंसान। गया, उसमें आप नहीं चला सकते। सर्दी में भी नहीं आप चला भी गर्मी सकता। में, आप फुल गर्मी में नहीं जा सकते। कुछ गैंग्स बहुत हैं, सही। लाइक तुम्हें याद होगा लास्ट ईयर मैं भी निकल रहा था, कुछ लोग हैं जो कि गर्मियों में भी निकल जाते हैं हार्ले डेविडसन में, बट इतना वो सही। मजेदार नहीं है। तो डेफिनेटली इफ यू आर बाइंग राइट। योर मोटरसाइकिल इन एन ऑफ सीजन, दिस इज आई मीन अगर आप यूज में ले रहे हैं, तो अगर आप ऑफ सही। सीजन में ले रहे हैं तो जाहिर है आपको पैसे ज्यादा बचेंगे। अगर आप ऑन ओके। सीजन में ले रहे हैं तो जाहिर है बंदे का सीजन है जिसके पास बाइक है तो वो तो नहीं बेचना चाहेगा। सही 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 सही। अच्छा, I'll just take a few more comments. Uh, Saqib Ali is saying, the great man, very nice photographer, and the way you captured beauty in every frame is very artistic. Thank you very much, Sakib. Mr. Muhammad Yunus is saying, categorical concentration is the sign of remarkable success. Stay happy and blessed. Thank you very much. Azhar Zahid is asking, are you having chocolates? I want I'm some. having chocolates. Obviously, I'm having right now. No, I'm just having a chewing gum right now. It's chewing gum. Sorry, Azra. All right. Our next question is, what do you enjoy more about riding, and do you like long rides? Because I think it's like two types of riders, right? Some who like really long ones. Yeah. So it depends on season, depends on the destination mostly, but I would say one thing कि आप जब जैसे मेरा जो मोटरसाइकिल है, it's a road king, it's a cruiser, it's like a big ass motorcycle। तो उसके ऊपर जब आप जाके बैठ रहे होते हैं तो उससे पहले आपको पूरा गेयर करना पड़ता है। लाइक आप पूरा क्या कहते हैं सेफ्टी शूज पहन रहे हैं, आप राइडिंग जीन्स पहन रहे हैं, आप लेदर जैकेट वगैरह पहन रहे हैं, अपने हर चीज आप महफूज कर रहे हैं, इतना बड़ा हेलमेट। सो पूरा गेयर अप करने में जो ना आपको 10-15 मिनट लग जाते हैं, और फिर जाके आपने इंजन स्टार्ट करना है, उसको आहिस्ता आहिस्ता निकालना है। तो इन सारी चीजों में आपको 10-15 मिनट लगेंगे। अगर आप जा ही 20-25 मिनट की राइड मारने रहे हैं तो जाहिर है कोई फायदा नहीं है, हार्ले डेविडसन इज नॉट फॉर यू। लेकिन अगर आपको लंबे राइड्स मारने हैं तो ही हार्ले डेविडसन आपके लिए बना है, और ये बने ही क्या कहते हैं लंबे टूर्स के लिए। सो अगर छोटा मोटरसाइकिल सही है, लेकिन इट्स लाइक अ रोड किंग और इट्स लाइक अ टूरिंग और अ क्रूजर बाइक, तो Hmm. लॉन्ग राइड आर द रियल थिंग। आप जाके बैठो फिर उसके बाद जब मोटरसाइकिल चलाओ तो फिर यानी कि 20-25 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा तो राइड होना है। उसके ऊपर टैंक जो है ऑलरेडी, मोटरसाइकिल का जो टैंक है वो गाड़ी के टैंक जितना तो है ही नहीं। तो ऐसा है Mm-hmm. नहीं कि आप 4-4, 5-5 घंटे मोटरसाइकिल चला रहे हैं बगैर रुके, आपको बार बार रिफ्यूलिंग के लिए रुकना पड़ता है। लेकिन ये है कि आई थिंक मिनिमम अगर मैं मोटरसाइकिल पे बैठूं तो मेरा जो है उतरने का दिल नहीं करता टिल एटलीस्ट नॉट लेस देन 1 आवर। Not less than 1 hour. नॉट लेस देन 1 आवर। Say. Okay, so we're going to ask you one more question, Mazedar. You travel a lot. You like traveling. So from all the places that you have traveled to yet, which would be your favorite destination and why? What did you like about it? You can list 1 to 3 places, your favorite places also. I will just list one, Zara. Um, would be Prague, my very
वेरी मोस्ट फेवरेट, जितनी अभी तक जितनी कंट्रीज में मैं गया हूँ उसमें प्राग इज माय टॉप फेवरेट. Okay. Yeah, I love that city. छोटा सा compact city है. उसमें they have like one of the oldest castles there, and it's like out of a storybook. It's such a beautiful city. वहाँ पे लोग, you can be anyone and nobody will ever look at you. हर तरह के तुम्हें लोग नजर आएंगे. हर बंदा बस अपनी जिंदगी में मस्त है. If you're an artist, if you're a creative person, just go to Prague or जाके Charles Bridge पे, just do whatever you like to do. It's an amazing city. It's really beautiful. Yeah. All right, we'll just take a few more comments. Dagmara is there, saying, Hi, "So great to Dagmara. see you guys." Hi, Dagmara. How are you? I'm thinking of bringing you in the show also. All right. Rehan is asking Faraz, why your favorite country? You just answered, right? Prague, Yeah. Czech Republic. I would say कि last year मेरा जो traveling experience था, last year मैं कराची से all the way up to खैबर पास जो है, नहीं सॉरी, खुंजराब पास चाइना बॉर्डर जो है, वहाँ तक हम लोग गए थे. सो पाकिस्तान भी बहुत ही हसीन मुल्क है. अगर आप लोगों ने नहीं Haseen देखा Mulk. हो या किसी ने नहीं देखा हो, तो पाकिस्तान itself is a great country to travel and just to relax and unwind. Definitely, definitely. All right. And now I'm going to ask you the last question. There are lots of people online. Everybody's talking. Uh, I want to ask you about your favorite book or lines from a book. My favorite book would be our mutual favorite book, Zara. It's The Candid by Voltaire. अभी कुछ दिन पहले भी तुमने mention किया था. So it's our favorite mutual book, Voltaire. अगर किसी ने नहीं पढ़ी, short stories, बहुत छोटी सी book है. Definitely it's a must read. Favorite lines उसकी क्या था, वो एक बड़ा ही famous था ना, work save us from three great evils, which is boredom, vice and need. So बस यही आपको बात समझ आ जाए तो आपकी जिंदगी सफल है. और भी एक आई थिंक ये क्वारंटाइन टाइम में तो boredom. Asha, we have another question. Dagmara is saying, great, how are you? You guys look great. Miss you loads. Miss you too, Dagmara. Rehan is asking, Hunza kaisa laga aapko? Yes, I believe Rehan has been all over Pakistan, so that's why I think he's asking you about Hunza. Hunza was better. Hunza, not only Hunza but Hunza के लोग, वहाँ का कल्चर और वहाँ पे जिस तरह की फ्रीडम है, जिस तरह की वहाँ पे लोगों को एजुकेशन है, इट्स ऑल जस्ट माइंड ब्लोइंग. मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, या वो पाकिस्तान के हिसाब से नहीं चल रहा, वो एक अलग से जो ना चल रहा है. अमेजिंग. Hunza could be one of my destinations where I would just love to go and retire. Yeah. Lovely, lovely. All right. How were the roads when you went to Hunza last year? Like it's comparatively, let's say कि compare करें तो I would not compare it to Europe or America या Saudi Arab, इस तरह की जो developed countries है ना, जहाँ पे इस तरह के roads तो मैं compare नहीं कर रहा. लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि it's easy, ऐसा नहीं है कि जो ना भाई बहुत ही टूटे फूटे रोड है, नहीं, बड़ा आसान है. डिपेंड करता है कि आपकी डेस्टिनेशन पे. कहीं कहीं पाकिस्तान के हिसाब से जो ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हिसाब से लिटरली देखा जाए तो अच्छे रोड्स हैं. आपको बीच में एक एरिया है जो कि डिपेंड करता है कि आप कौन से राउट से जा रहे हैं, हंजा वगैरह. तो एक एरिया है जो कि सही नहीं है. लास्ट टाइम जब मैं गया था वो 1-2 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर का बस पैच था. दैट वाज लाइक द वर्स्ट पार्ट ऑफ द राउट. लेकिन उसके अलावा जो है, इट्स गुड, इट्स नाइस. रोड छोटा है बस, यानी 2 लेन है ना, 2 तरफ का लेन है, और कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, और हर बंदा हाई बीम मार के आ रहा था. तो दैट्स फाइंग. रात को जो ना वहाँ पे ड्राइव करना इतना मजेदार नहीं है, लेकिन रोड सही है. परफेक्ट. That was my question actually. I wanted to know how the roads are because I didn't go. Yeah. All right. Okay, that's great. So I guess it was a very enjoyable session. आज लोगों को हार्लिस के बारे में कुछ टिप्स मिली होंगी, स्टॉल के बारे में कुछ टिप्स मिली होंगी, और बड़े मजेदार आज की बातें नहीं, वेरी रिलैक्स्ड एंड एंजॉयबल. आई होप आपको भी मजा आया हो, आपने एंजॉय किया हो.
Yes, it was fun. Thank you. आपने अपने लाइव शो पे हमें भी लिया। Welcome anytime. बोर्डम वाली जो बात है इसका लाइक इतना वो नहीं है। लाइक अभी जो टाइम चल रहा है उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि कह रहे हैं बोरियत हो रही है। लिटरली मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे जो कि 3-4 साल से बोल रहे हैं, एक ही चीज बोले जा रहे होते हैं न्यू ईयर्स पे कि भाई यार टाइम कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा, टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, ये साल देखो सही कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और अब सही। जो है क्या कहते हैं उनके अब वो पास क्या टाइम कर रहे हैं जो है जब टाइम मिला? अब आपके पास टाइम ही टाइम है। हाँ, तो करो। अभी भी जो है कुछ लोग अभी हैं, भी नहीं कर उनमें रहे। से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दे आर कमिंग बैक और यार वो टाइम गुजर ही नहीं रहा, टाइम गुजर ही नहीं रहा। हाँ, तो तो भाई ये ये तो बहुत अच्छा टाइम है ना, कि आप बुक रीड कर लो, वो जो आप नहीं कर पा रहे थे, या कोई स्किल नया ले लो उस बार में आप। हाँ, क्या आपका क्या ख्याल है? मतलब ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं अभी? अब डजंट दिस प्रूव के टाइम हो ना हो, जिसने करना है वो करता है, और जिसने नहीं करना है उसको सिर्फ बेकार बातें करनी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट जब दैट? मेरे ख्याल में मुझे लिटिल ऐसा बिट लगता है कंट्रोवर्शियल। कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ कर नहीं रहे होते। मुझे मेरे बहुत सारे अलग अलग हॉबीज हैं, उनमें से किसी न किसी एक चीज में मैं गुस्सा होता हूँ। लेकिन कभी कभी टाइम होता है कि यू जस्ट आपके पास जॉब्स हैं और आपकी ये कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लाइफ के अंदर, उसमें आप इतना फंसे हुए हैं कि आपके पास और कुछ करने के लिए जो है ना कुछ है नहीं है, एनर्जी नहीं है, या आप कुछ कर नहीं रहे। उस ना कुछ करने से जो ना बेसिकली आप बोर्डम में जाके गिरते हैं। लेकिन आप अगर हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप किसी ना किसी चीज पे लगे हुए हैं, तो आप बोर होंगे नहीं। सो इफ यू आर बेसिकली लिविंग इन द मोमेंट तो आपको जो है ना मसला नहीं होगा। इफ यू आर लिविंग इन फ्यूचर और इफ यू आर लिविंग इन पास्ट तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वाले जो फिलहाल जो कंडीशन है इसके अंदर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड जस्ट डोंट थिंक, सही जो भी दिमाग में आ रहा है बुक पढ़नी चाहिए, हाँ भाई जाके बुक उठा ली, ये करना चाहिए, हाँ भाई जाके वो कर लिया, जस्ट स्टार्ट विद रैंडम थिंग्स। बट जिस चीज में आपका इंटरेस्ट बन रहा है उसी के ऊपर आप बिल्डअप करते रहें। अगेन ये जो टाइम हम लोगों के ऊपर अभी आया है, तो पूरी हिस्ट्री में कभी हम लोगों के ऊपर नहीं आया ना, ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के ऊपर आया है। और सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर नहीं आया, लाइक मेरे पे भी है, आपके ऊपर भी है, कुछ लोग हैं उधर जो पाकिस्तान में, कुछ लोग टर्की में, जो भी जहाँ पे भी है, उन सबके ऊपर ये टाइम आया है। अब एक सही ऐसी सही सही। सिचुएशन जो सबके ऊपर आई हुई है, उसको लेके रोज रोना में मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं है। आप रो रहे हैं तो क्या भाई, बहुत सारे लोग और भी रो रहे हैं, इसमें आप कर क्या रहे हैं, दैट रियली काउंट्स। दिस इज व्हाट आई थिंक। सही सही सही, अगर ठीक है। रोना शुरू हो जाएंगे आप, उस नेगेटिव उसमें चले जाएंगे, तो बस फिर आप उसी में फंसे रहेंगे कि यार ये भी नहीं हुआ, फिर अगले दिन आपको लगेगा अच्छा अब ये भी नहीं हो रहा, अच्छा वो भी बंद हो गया, अच्छा ये भी हो गया। वो तो जाहिर है होगा, और प्रोसेस है, अब यही है, इसी के अंदर आपको उसको यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एज अ न्यू नॉर्म एंड टेक इट एज अ सही, चैलेंज एंड लिव थ्रू इट। दिस इज व्हाट आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चलें, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू आने के लिए ऑन द शो। एंड आई होप आप सबने भी इंजॉय किया हो। Thank you everyone for having me and for all those lovely comments, and keep the love coming. Thanks a lot. Have a ओके good जी, day. थैंक यू। गुड बाय एवरीबॉडी, गुड बाय। Bye. बाय फराज। Bye. How should I go offline? Oh, you.